friends, welcome back again, and I'm going to solve a very important problem in the Lebesgue integral. So the problem is that give an example to show that f is belong to the Lebesgue closed interval a comma b, but it is not a Riemann integrable on closed interval ab, right? You have a function which is, you want to show that this function is the Lebesgue integral over closed interval ab, but this is not a Riemann integrable. So generally we call this problem is the Dirichlet equation, Dirichlet problem. So right, so in the Dirichlet function, what I am going to solve this problem. So this is the Dirichlet problem. If you want to write this, you can also write this is the Dirichlet problem called, okay, what is that? Dirichlet, right? So Dirichlet function, this is called Dirichlet function. Now how to solve this problem? Let's take a example. Like this is the example, right? I have, and I just take this function. So the function I'm taking here, I'm taking 1 when this x, like I have taken any element x belongs to the, when I'm taking the intersection of this with the rational numbers with the closed interval a comma b. So if I'm taking the intersection between the rationals and closed interval a comma b, so this will be 1. And when I'm taking the intersection of irrational numbers, so apart from the rationals, so this will be intersection with this term closed interval ab, this will be 0, right? So for the first time we will solve this f function belong to the Lebesgue integral, then I will solve this function why it is not Riemann integrable, right? So first of all I will try to recap you, because those aspirants who don't know the Lebesgue integral first, so first know that what is the Lebesgue integral. So a function is said to be a Lebesgue integral on closed interval ab if Lebesgue lower integral is equal to the Lebesgue upper integral, right? So if f belongs to the Lebesgue closed interval a comma b, means f is Lebesgue integrable on closed interval ab, right? So I hope this is clear now. Now let's solve this question. So for f belongs to Lebesgue integral closed interval ab के लिए I want to just solve this, okay? And yeah, please, if this video is going to be too long, so don't try to skip it, because if you skip it you will not be able to understand each and everything. So I will try to explain you each and every concepts that is going to use here. So please make sure that you have to watch it, right? So let's begin this. So let P be any partition let P be any partition. You know that we want to take, we have to take first partition, okay? So we denote P for the partition, and the partition will be a1 a2. In general term I am taking this partition, okay? And what is the a1 and what is the a2, I will try to define to each and everything, okay? So here a1 is what, right? So a1 will be your partition of the rational numbers, where you are to taking the rational numbers into intersections, where you are to take the intersection of the rational numbers into the intersection of closed interval ab. So I will try to define you this a1 and this a2, right? So let's see how this will become intersection of rational numbers into the closed interval ab, right? So a1 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? a1 is the set of rational numbers, right? So you can also write this is the set of rational numbers, so in closed interval ab you can also write, okay? So it means that is a1 is the q intersection closed a to b, and your a2 will be set of irrational. So here a2 will be irrational numbers intersection closed a to b, right? Interval. And also we can write, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, हम पहले यूनियन लेंगे फिर इंटरसेक्शन लेंगे, है ना? तो यूनियन क्या होता है, दोनों पार्टीशंस का यूनियन क्या होगा, पूरा क्लोज हमारा इंटरवल आ जाएगा, ठीक है? पूरा क्लोज इंटरवल ए टू बी आ जाएगा, और इंटरसेक्शन यही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा Lebesgue इंटीग्रल में इंटरसेक्शन को जो होता है 5 होता है, वो इम्प्टी होता है, एंड जो हमारा यूनियन होता है वो जो क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी होता है, राइट? तो पूरा सेट होता है. Then after that what we have to do, देखिए this is the P which is the measurable partition on closed interval AB, right? So we can write here, hence P is the measurable partition. If you want to write you can write that, otherwise you can skip this, okay? Because you know that this is the measurable partition on closed interval AB, then this will
union of this will be become closed interval a to b, and the intersection will be phi empty, right? So the now then what we have to do, see the small m which I am using for the infimum of this function, because this is the measurable of meजरेबल फंक्शन, मेज़र ऑफ ए के लिए मैं यूज़ करूँगी तो स्मॉल एम, एंड जो हमारा जो मेज़र हमारा a2 के लिए जो मैं यूज़ करूँगी वहाँ पे जो है वो a2 के लिए तो स्मॉल m, ये स्मॉल एक जनरल मेजरेबल उसके लिए मैं यूज़ करूँ। अभी जो हम इन्फीमम और जो उसमें लेंगे तो उसके लिए मैं इन्फीमम के लिए मैं स्मॉल m1 यूज़ करूँगी, और जो है कैपिटल m1 और m2 जो है वो मैं कैपिटल m1 m2 में सुप्रीमम के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये आप टर्म्स याद रखिएगा, ठीक है। ये स्मॉल m जो है m यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मुझे मेज़र निकालना है a1 जो हमारा पार्टीशन था, तो उसका m a1 क्या निकलेगा, उस a1 जो मेज़र होगा उसका 0 होगा, ठीक है। हमारे फंक्शन से आप याद रखिएगा, देखिए जो फंक्शन है यहाँ से ये देखिए, ठीक है, इरेशनल नंबर्स के और रैशनल नंबर्स के, यहाँ पे क्या a1 का मेजर जो है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर a1 के साथ हम इसका मेजर लेंगे a1 के साथ, तो a1 का मेजर क्या हो जाएगा, वो a1 जो हमारा वो काउंटेबल है, राइट। सो काउंटेबल है तो और उसका इंटरसेक्शन जब ले रहे हैं क्लोज इंटरवल a, b के साथ हम ले रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, a1 का काउंटेबल है और वो 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 हो गया बिकॉज a1 इज़ दी काउंटेबल। यू कैन ऑल्सो राइट दिस, a1 इज़ काउंटेबल, okay, so I am writing here a1 is the countable, right? So a1 is the countable, then measure of a1 is will be become 0, right? And the measure of a2 will become your देखिए ये यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास b माइनस ए फॉर दिस जनरल टर्म। सो या ये हो गया हमारा। अब हम इन्फीमम लेंगे, ठीक है। हमने देखिए पहले पार्टीशन डिफाइन करेंगे, पार्टीशन यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा उनका, आपने यही दिखा दिया। उसके बाद मेजर के साथ इनका क्या होगा, मेजर क्या होगा a1 का, मेजर a2 क्या होगा, ये आपको दिखाना है। देन आप यहाँ पे पहुँचोगे कि मेजर जो m1 है वो एग्जैक्टली है क्या, वो तो इन्फीमम है ना, क्या है, फंक्शन f(x) का, जहाँ x बिलोंग करेगा a1 को मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है, a1 पार्टीशन में। और ये हमारा इन्फीमम, इसका ये जो इन्फीमम आएगा स्मॉल m1 यानी जो इन्फीमम आएगा, इन्फीमम आपको निकालना आ गया होगा अब यहाँ पे, तो ये हमारा इन्फीमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फीमम यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अभी मैं जो m2 है हमारा, जो मैं यहाँ ले रही हूँ, ये इन्फीमम जो a2 के लिए पार्टीशन के लिए होगा, तो x बिलोंग्स टू a2, इसके लिए यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे इन्फीमम हमने ले लिया, अब यहाँ पे हम सुप्रीमम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कैपिटल m1 यूज़ करेंगे, ठीक है, कैपिटल m1 सुप्रीमम f(x). आपको इन्फीमम और सुप्रीमम मतलब ये जो लोअर सम और अपर सम निकालना आता होगा ना, तो उस ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे सुप्रीमम यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कैपिटल m2 है, जिसे मैं यहाँ पे आप पार्टीशन लिख दीजिएगा, ठीक है, टू a1 और ये a2 के लिए, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू a2, तो ये पार्टीशन इसके लिए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुप्रीमम इन्फीमम ले लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आफ्टर दिस फंक्शन स्मॉल m1 m2 और कैपिटल m1 m2 हमने निकाल लिया। देन वी हैव टू फाइंड आउट LPF एंड UPF, राइट। सो लोअर सम और अपर सम के लिए हम क्या करेंगे, LPF हमको फाइंड करना है, तो LPF यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। LPF आपको फाइंड करना आता होगा वैसे यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, बस इन्फीमम ले लेना, इन्फीमम ऑफ जो कि ये पे यहाँ पे है, यही हमारा LPF हो जाएगा। और सुप्रीमम के लिए हम क्या करेंगे, सुप्रीमम के लिए हम सुप्रीमम ऑफ f(x) लिख देंगे UPF के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नहीं भी क्लियर होगा तो यहाँ पे मैं भी लिखूँगी, तो आप फाइंड कर लीजिएगा और ठीक है देख लीजिएगा कि हाँ सही है वो चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबेग LPF ले लिया, UPF ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लेबेग लोअर इंटीग्रल लेंगे, लेबेग अपर इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि बिकॉज अगर इफ़ यू वांट टू शो दैट कि लेबेग f बिलोंग टू द लेबेग क्लोज इंटरवल a to b, सो यू हैव टू शो दैट कि लेबेग लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू द लेबेग अपर इंटीग्रल, राइट। सो लेबेग लोअर इंटीग्रल हम यहाँ पे दिखाएंगे बस, ठीक है। यही एक टर्म है जो आपको निकालना है। LPF UPF आप तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे यही होगा 1 होगा, ठीक है। और UPF जब निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये हमारा देखिए ये क्या है, लेबेग का लोअर इंटीग्रल है, लेबेग के लोअर इंटीग्रल यानी कि a to b हम ले रहे हैं पार्टीशन, ठीक है, फंक्शन f(dx) है, और यहाँ mi इंटू LPF हो गया, ठीक है। ये हमारा लेबेग का लोअर इंटीग्रल होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ कैपिटल mi है तो यहाँ पे आप mi लिख देंगे, और LPF की जगह वैल्यू यही होगी, है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन को लिख दिया, क्या है, सुप्रीमम LPF है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं तो आप यहाँ लिख लीजिए, मैं सुप्रीमम में लिख देती हूँ, सुप्रीमम, ठीक है। तो ये सुप्रीमम एम आई इंटू ये हो गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है जो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एल पी, ये जो लोअर इंटीग्रल से सम होता है, ये क्या होता है एक्चुअली में, तो ये लोअर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू दी सुप्रीमम एल पी एफ होता है, ठीक है। तो सुप्रीमम ले लिया, एल पी एफ हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये मैंने एम आई फंक्शन ले लिया बिकॉज अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक सारे टाइम के लिए हमको ओपन करना होगा, सिग्मा यहाँ पे होता है सुप्रीमम सिग्मा ये स्मॉल एम आई इंटू कैपिटल एम आई, इसका मान तो यही होगा ना, स्मॉल एम इंटू ए आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे समेशन होगा, तो यहाँ पे मैंने इसलिए आई टर्म जनरल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं पुट करती चले जाऊँगी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे, m1, ठीक है, स्मॉल m1, फिर इसके लिए a1 करेंगे, फिर इस प्लस स्मॉल m2 a2 ऐसे करेंगे। तो आपको ऐसे करना है, m1 a1 करना है, फिर प्लस m2 a2 ऐसे करना है, ठीक है। वैसे ही प्लस टर्म तक लेके जाना है और ये सुप्रीमम लेना है इसका, ठीक है। तो अब जब इसका हम सुप्रीमम लेंगे, आप पहले देखिए ये फंक्शन आ क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए m1 a1 आप करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या रहा है, 1 आ रहा है, m2 a2 करेंगे तो क्या 0 आ रहा है, यानी 1.0 प्लस 1 इसका आएगा 1, फिर अगला टर्म 0 आएगा, मतलब ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये 0 जा रहा है ना, और 0 जा रहा है, और सुप्रीमम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना। तो यानी ये हमारा लेबेग का लोअर इंटीग्रल क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें लेबेग के अपर इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही अपर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, देखिए तो ये चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे अपर इंटीग्रल अब हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। देखिए अपर इंटीग्रल क्या होगा लेबेग का, तो इंटीग्रल ए टू बी और एफ टी एक्स इज इक्वल टू दी इन्फीमम होगा यू पी एफ का, है ना। तो अपर सम का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फीमम लेते हैं ना, यही हमारा लोअर लेबेग का जो है अपर इंटीग्रल होता है, तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे। अब इन्फीमम यहाँ ले लिया, अब यही मैं कह रही थी कि यहाँ पे जो यूपीएफ होता है इसका क्या करते हैं, समेशन लेते हैं, i इक्वल टू 1 to n पे। तो i इक्वल टू 1 to n पे करेंगे तो एम आई स्मॉल एम आई इंटू एम इंटू ए आई होगा, ये जनरल टर्म है। अब यहाँ पे वैसे ही हमको फिर ओपन करना है, तो वैसे ही जैसे वहाँ पे हमने m1 a1 करा था, m1 a2 a2 करा था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो m1 a1 और m1 a1 m2 a2 ऐसे ही होगा प्लस जनरल टर्म तक। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगला टर्म, फिर अगला टर्म 1 होगा, फिर 0 होगा, प्लस ऐसे ही जाएगा। तो ये 0 ही टोटल हो जाएगा, यानी हमारा ये जो इन्फीमम लेंगे तो इसका भी 0 इन्फीमम आएगा। तो यानी कि ये जो हमारा लेबेग का अपर इंटीग्रल है और जो हमारा लेबेग का लोअर इंटीग्रल आ रहा था वो दोनों ही इक्वल आ रहे थे, राइट। सो एफ बिलोंग टू दी लेबेग क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, हम यहाँ से ये कह सकते हैं, दैट इज़ हम कह रहे हैं कि लेबेग का जो लोअर इंटीग्रल है एफ टी एक्स वो इक्वल आ रहा है लेबेग के अपर इंटीग्रल के, राइट। हम यही कहना चाहते हैं और ये हमने यहाँ से शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ था जो हमने फर्स्ट जो हम चीज़ दिखाना चाहते थे कि एफ जो है वो लेबेग इंटीग्रल होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो ये जेटी फंक्शन का एग्जांपल लेकर के ये चीज़ें हमने यहाँ तक प्रूव करी। अब आपको आगे देखना है कि जो हमारा फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है उसके लिए भी देखेंगे, बहुत ईजी है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको इस वीडियो में करके, ठीक है। तो देखिए चलिए अब उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक पार्टीशन लेंगे, राइट। सो लेट पी पार्टीशन है हमारा एक जनरल पार्टीशन x1 x2 x3 अप टू xn लेंगे, ठीक है। ये हमारा b होगा, ये हमारा a होगा, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल a टू b ले रहे हैं तो इसलिए, ठीक है। फंक्शन वही हमारा रहेगा, ठीक है। फंक्शन आपको वही लेना है, 1 रहेगा, रैशनल्स के साथ इंटरसेक्शन 0 होगा। जब हमारा फंक्शन जो है वो इरेशनल होगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे क्लोज 0 1 के साथ। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम सीधे इन्फीमम और सुप्रीमम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इन्फीमम ऑफ एफ एक्स जो कि हमारा 0 आएगा। अभी हमने देखा था फंक्शन करके, तो ऐसे ही फंक्शन ये भी है, सेम ही फंक्शन है, तो वैसे ही हमारा 0 आएगा। और जो हमारा सुप्रीमम होगा वो आपको पता है कि ये 1 होगा, ठीक है। सुप्रीमम हमारा 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सुप्रीमम यहाँ पे 1 हो गया। पार्टीशन आप लिख सकते हैं xi माइनस 1 से xi होगा, बिकॉज हम पे xn तक ले रहे हैं। तो अगर हम xi एक जनरल टर्म यहाँ पे मान लेते हैं xi होगा, तो उसके लिए आपको अगर एक इंटरवल लेना है तो आप क्या लोगे, xi माइनस 1 और xi लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप x को लिख सकते हो, यहाँ पे x बिलोंग टू xi माइनस 1 टू xi, ये एक जनरल टर्म यहाँ से पार्टीशन ले रहे हैं, ठीक है। डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, ठीक है। फॉर ऑल i के लिए आप कर रहे हो तो 1 to n कर दो, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे LPF ले लेते हैं और UPF लेंगे, है ना। तो लोअर सम ले लेते हैं, लोअर सम LPF हमारा वही होगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई होता है, आप सबको पता होगा। फिर आप उसको ओपन करोगे m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2, है ना। तो वो भी 0 ही आएगा हमारा, आप देखिए करके देख सकते हैं, 1 0 इंटू 1 0, तो मतलब आई मीन 1 डेल्टा m1 x1 तो वो 0 है, प्लस m2 x2 वो भी 0 होगा, तो वो 0 0 होगा। और UPF अगर आप यहीं पर लोगे
ठीक है। तो ये मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये करोगे यूपीएफ लोगे तो यूपीएफ आपको पता है कि अभी जो है यूपीएफ क्या आ रहा था, यूपीएफ जो है इसका जो है ये जो है वो b माइनस ए आ रहा था ना। तो यूपीएफ आप लोगे तो इसका 0 i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करी। उसके बाद m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2, और यहाँ पे जो x1 माइनस x0 आएगा, फिर x2 माइनस x0 आएगा, तो वहाँ पे b माइनस ए आएगा, राइट। तो ये हमारा b माइनस ए टर्म होता है और ये 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो लेबेक का लोअर इंटीग्रल अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा ये 0 ही आएगा बिकॉज हमारा ये LPF 0 है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम लेंगे ये जो है सुप्रीमम ऑफ इसका 0 फंक्शन, तो सुप्रीमम 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना, आपको पता है। और यहाँ पे अगर मैं अभी अपर इंटीग्रल लूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपर इंटीग्रल अगर मैं इसका लूँगी तो यहाँ पे हमारा अपर इंटीग्रल जो है वो 0 नहीं है क्योंकि वो b माइनस ए आ रहा है ना। अगर मैं इसका इन्फीमम लूँगी, इन्फीमम यूपीएफ लेते हैं ना, तो लेबेक के अपर इंटीग्रल में इन्फीमम यूपीएफ लेंगे तो वो तो b माइनस ए आ रहा है ना। तो ये तो b माइनस ए आ रहा है, ये तो 0 नहीं आ रहा है ना। इट मीन्स दैट ये दोनों जो हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने रिमान इंटीग्रल मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लेबेक कर दिया, ठीक है। तो ये LPF की जगह आपको RPF करना चाहिए था यहाँ पे बिकॉज हम रिमान के लिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ना। बाकी चीज़ें सही हैं सब, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन में कर दिया था तो यहाँ पे R लिखना पड़ता है क्योंकि सिंबल्स दोनों हम उसके लिए लेबेक के लिए L यूज़ करते हैं और रिमान के लिए R यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे लेबेक का लोअर इंटीग्रल आपको पता है 0 होगा और ये अपर इंटीग्रल जो है वो b माइनस ए होगा। इसका मतलब दोनों ही इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिमान इंटीग्रेबल है वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू दी, सॉरी फिर मैं बार बार यही लिख देती हूँ, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था। ओके, आई विल डिफाइन हियर f डज नॉट बिलोंग्स टू दी रिमान क्लोज्ड इंटरवल a टू b, यानी कि ये फंक्शन जो हमारा है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, बट ये जो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है बट ये लेबेक इंटीग्रल है, ठीक है। ये डिरिचलेट फंक्शन एग्जांपल है कि ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता बट ये लेबेक इंटीग्रल हो जाता है बिकॉज क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये एक जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से कि ये जो लोअर इंटीग्रल है जो रिमान का, इट डज़ नॉट इक्वल टू दी, आप यहाँ पे R भी यूज़ कर सकते हो। अगर R नहीं भी यूज़ करते हो तो भी ये डिफाइन होता है कि हाँ ये रिमान इंटीग्रेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये इक्वल नहीं है बट क्या है, बट यहाँ पे रिमान इंटीग्रेबल नहीं है बट यहाँ पे क्या है, f बिलोंग टू द लेबेक इंटीग्रल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। सो वीडियो, थैंक्स यू so much friends who are watching me at the end of this video, and I'll try to explain you each and everything in the next upcoming videos also. So be with me at the end of this video and try to subscribe this channel and share with your friends as much as you can so that I will provide you more good content on my channel. And thank you so much. And wherever any how you have any doubt regarding this problem, you can definitely comment me. I will definitely try to resolve these issues with comment by comment or any how if I'll make another videos on that, so definitely, okay. So thank you so much viewers, and first of all I will try to show you the whole content that I'll provide you here. You can watch it, ओके। सो आप एक बार यहाँ पे रिकैप करके देख सकते हैं, चूँकि अगर आपको लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंटेंट, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो एंड ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, वी विल बी कमिंग सून विद द नेक्स्ट वीडियो।